how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is Advanced Features of MS Excel. Let's get started. Analyze the graph given below and answer the questions. Who scored the maximum marks? Who scored marks less than 200? Name the students who scored marks greater than 300. बच्चों यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपको उसे एनालाइज करना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं. In your previous classes, you have learned the basic features of MS Excel, which is a popular spreadsheet software. It sometimes becomes difficult to analyze and compare data in a complex spreadsheet and obtain useful inferences from them. In such case, it is useful to represent these data graphically. In this chapter, we will learn to क्रिएट चार्ट्स इन MS Excel. बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो स्प्रेडशीट होती है उसमें अपने डेटास को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और साथ ही साथ उसमें कैलकुलेशंस वगैरह भी परफॉर्म की जाती है. लेकिन अगर आपको इसमें डेटा को कंपेयर करना हो तो वो बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है. इस सिचुएशन में हमें चार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि चार्ट्स के थ्रू हम डेटास को अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं और वो दिखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं. तो हम इस चार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. Charts in Excel. Charts are pictorial representation of data. They are powerful analytical tools. Charts look more attractive than simple tabular forms. Charts make it a lot more easier for us to analyze and interpret data. Charts are linked to data on the worksheet and automatically change when the data changes. Charts can also indicate trends and relationships between series of numbers. तो बच्चों चार्ट्स जो होते हैं वो आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी डेटा के. डेटास तो नंबर्स में लिखे होते हैं, टेबल्स में लिखे होते हैं, लेकिन चार्ट्स के थ्रू आप इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो. ये पावरफुल एनालिटिकल टूल माना जाता है. ठीक है, इसमें आप डेटास को रिप्रेजेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो अपनी सिचुएशन या अपनी नीड के अकॉर्डिंग. Component of a chart. A chart may consist of the following components. Chart title. It is generally placed at the top of a chart. It helps a user to know the purpose of a chart. Data series. It refers to the data entries from which a chart is derived. A chart can have one or more than one data series. अब चार्ट के कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, चार्ट में सबसे पहला तो आपको चार्ट टाइटल देखने को मिलता है. ये आपके चार्ट के टॉप पे प्रेजेंट होता है और आपको ये चार्ट का नाम जो है वो बताता है, ये चार्ट किस बारे में वो ये मेंशन करता है. नेक्स्ट आता है डेटा सीरीज. ये रेफर करता है जो भी डेटाज आप एंटर करते हो उस एंट्रीज को, उस टेबल को ये रेफर करता है. ठीक है, और जो चार्ट होता है उसमें एक से ज़्यादा डेटा सीरीज जो है वो देखने को मिलती है. थिंक बॉक्स. विच स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वॉज यूज बिफोर MS Excel. बच्चों आपको बताना है कि MS Excel से पहले कौन सी स्प्रेडशीट जो है वो यूज़ की जाती थी डेटा को स्टोर करने के लिए. Fact to know. You can have as many as 256 data series in a chart in MS Excel. MS Excel में बच्चों आप 256 डेटा सीरीज से भी ज़्यादा जो डेटा है वो आप स्टोर करके रख सकते हो और आप इन्हें चार्ट में डिस्प्ले भी कर सकते हो. Now chart area. It includes all object and elements in a chart. Plot area. This is a rectangular area where data is actually plotted. It is bounded by two axes, x-axis and y-axis. X-axis, category axis, the horizontal line which shows the data that has values plotted against it. Y-axis, value axis, the vertical line which shows values against the data of the x-axis. Axis titles. The axis titles are the titles given to the x-axis and y-axis of a chart. Legends. This identify each data series in a unique color or pattern. Data labels. It provides additional information about a data marker, part of a chart that shows a particular data items of a data series. Grid lines. The grid lines are the horizontal and vertical lines drawn on the plot area. Grid lines make it easier to read and understand the values. तो बच्चों आगे हमें चार्ट एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स
आपको देखने को मिलते हैं चार्ट्स में। फिर इसके बाद आता है प्लॉट एरिया। ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पे आपके जो चार्ट्स होते हैं, जो डेटा होता है, उसे एक्चुअल में प्लॉट किया जाता है, ठीक है। और ये 2 एक्सिस के साथ बाउंड किया जाता है। एक होता है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा होता है आपका वाई एक्सिस। एक्सिस जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें आपके कैटेगरीज को दर्शाया जाता है। वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन होती है जिसमें वैल्यूज़ को दर्शाया जाता है। इसके बाद एक्सिस टाइटल आ जाते हैं, ठीक है। आपके चार्ट में जितने भी एक्सिस होते हैं, एक्स वाई, इनके जो टाइटल होते हैं वो आपके एक्सिस टाइटल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है लेजेंड्स। ये आइडेंटिफाई करता है हर एक डेटा सीरीज़ को उसके यूनिक कलर एंड पैटर्न के साथ। इसके बाद आता है डेटा लेबल। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी डेटा के बारे में। नाउ ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है जो कि प्लॉट एरिया में ड्रॉ की जाती है, ठीक है। ग्रिड लाइन जो होती है वो आपको ईजी बनाती है कि आपको जो डेटा है वो आप रीड कर सको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। Commonly used chart types. In Excel, there are 11 types of charts on Charts group of Insert tab. Some of the most commonly used charts are listed below. First, column chart. A column chart is a commonly used chart type to display in the form of vertical bars. It shows the data changes over a period of time. Second, bar chart. In this chart, categories are shown along the x-axis and values along the y-axis. It is also shows comparisons among individual items. In this chart, categories are shown along the y-axis and values along the x-axis. Third, line chart. It shows new data changes over a period of time. In this chart, each data item is represented by a dot called a data marker. Fourth, area chart. It is used to emphasize the difference between several sets of data over a period of time. This chart is mainly used for representing sales and production figures of a company. Fifth, pie chart. It represents the distribution of each data items over a total value represented by the whole circle. It is used for showing data from one data series only. Except these charts, Excel has some other charts that includes stock, surface, donut, bubble, scatter and radar charts. तो बच्चों हम जान लेते हैं कि ये चार्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेल में 11 टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं जो कि आपको चार्ट ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? सबसे पहले होता है आपका कॉलम चार्ट, ठीक है। ये आपके चार्ट को डिस्प्ले करता है वर्टिकल बार्स में, जैसे आपके स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, इसमें आपके चार्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके बार चार्ट, ठीक है। आपकी जो कैटेगरीज होती हैं अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसकी वैल्यूज़ को बार चार्ट के थ्रू दिखाया जाता है और साथ ही साथ आपके जो आइटम्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन भी इसके थ्रू ही दिखाया जाता है। इसके बाद आपका लाइन चार्ट आता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लाइंस के थ्रू किसी भी चीज़ का कंपैरिजन दिखाया जाता है, उनके राइज उनके फॉल को दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें लाइंस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है एरिया चार्ट। ये डिफरेंट सेट ऑफ जो आपके डेटा होते हैं किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में, उसमें ये ज़्यादा एम्फसाइज करता है उनके डेटा सीरीज़ में, ठीक है। ये जो चार्ट है ये आपकी सेल्स को या आपके कंपनी के जो प्रोडक्शन फिगर है उन्हें दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है पाई चार्ट। ये आपके डेटा को, जो हर डेटा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पाई चार्ट के थ्रू दिखाया जाता है। ये आपने देखा होगा, ये कैसा होता है? राउंड होता है, सर्कल में होता है और इसमें डिफरेंट आपके डेटाज जो होते हैं वो दर्शाए जाते हैं। क्रिएटिंग अ चार्ट। Now that you have learned about different types of charts, let us learn how to create charts. To create a chart, follow these steps. Step 1, select the range of cells that you want to plot in chart including the headings. Step 2, click on the Insert tab. Step 3, select the type of chart, for example column, you want from the charts group. Step 4, from the drop-down list that appears, select the desired chart subtype. A chart of your choice is created on the current worksheet. As the chart gets inserted, the Chart Tools category will appear showing two contextual tabs, Chart Design and Format tab. With the help of the commands in these tabs, you can do various changes in the chart. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम चार्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि चार्ट को क्रिएट करने से पहले आपको एक डेटा सीरीज़ बनानी होती है। फिर उस डेटा को आप क्या करोगे, उस रेंज ऑफ सेल को आप सेलेक्ट करोगे जिसे आप चार्ट में इंक्लूड करना चाहते हो या चार्ट में दर्शाना चाहते हो। ठीक है, इसमें आपकी हेडिंग भी इंक्लूड होगी क्योंकि आपके चार्ट की हेडिंग भी उसके ऊपर आएगी। इसके बाद जब आप जो सेल्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेते हो, देन आपको इंसर्ट टैब पे जाना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ चार्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉलम जो चार्ट टाइप है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। कहाँ से? चार्ट ग्रुप से। उसके बाद आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जहाँ से आपको डिज़ायर्ड चार्ट सब टाइप को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर आप देखोगे जो चार्ट है आपकी चॉइस का वो आपकी करंट वर्कशीट में अप्लाई हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जब आपका चार्ट जो है इंसर्ट हो जाता है तो आपकी जो चार्ट टूल कैटेगरी है वो अपीयर हो जाती है, जिसमें आपके 2 कॉन्टेक्चुअल टैब्स नज़र आते हैं। एक होता है आपका चार्ट डिज़ाइन एंड दूसरा होता है आपका फॉर्मेट टैब। इन कमांड्स की हेल्प से आप अपने चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। टेक टिप: the easy method to create a chart is to select the data and press F11 key on the कीबोर्ड। अब बच्चों यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी बताई गई है कि कैसे आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट आपको F11 की जो है अपने कीबोर्ड में प्रेस करनी है। एडिंग चार्ट एलिमेंट्स: we can add various elements such as axis titles, chart title, data labels and legends to enhance the readability of the chart. Click on the chart and use the add chart element command under the chart layouts group of chart design tab. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम चार्ट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे एक्सेस टाइटल होता है, चार्ट टाइटल होता है, डाटा लेबल्स होते हैं, इवन आपके जो लेजेंड्स होते हैं जिन्हें आप अपने चार्ट की रीडेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्हें आप कर सकते हो ऐड चार्ट एलिमेंट के थ्रू, जो कि आपको चार्ट लेआउट के अंडर मिलते हैं। ठीक है, एडिंग चार्ट टाइटल: to add chart title, follow the given steps. Step 1, click on the chart title option in the add chart element drop down list. Step 2, click on the above chart or centered overlay option. A chart title text box appears. Step 3, type the text in the chart title text box. After typing the title, क्लिक आउटसाइड द चार्ट। तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम चार्ट टाइटल को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो हम जान लेते हैं कि कैसे हम चार्ट टाइटल को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको चार्ट टाइटल पे क्लिक करना है। ठीक है, जो आपको दिखेगा ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में। उसके बाद आपको क्लिक करना है अबव चार्ट और सेंटर्ड ओवरले ऑप्शन को। ठीक है, आपके सामने चार्ट टाइटल डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन उसके बाद आपको चार्ट का जो टाइटल है वो टाइप करना है इन चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जब आप टाइटल टाइप कर लोगे आपको चार्ट के आउटसाइड कहीं भी आप क्लिक करोगे तो आपका जो चार्ट टाइटल है वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एडिंग एक्सेस टाइटल: adding an axis title to the chart helps the user to know exactly what each axis represents. Follow the given steps to add axis title. Step 1, click on the axis titles option in the add chart element drop down list. Step 2, do any of the following. To add a title to a primary horizontal category axis, click primary horizontal axis title, or to add a title to a primary vertical value axis, click primary vertical axis title and axis titles box appears. Step 3, type the text in the axis titles box or in the formula bar. After typing the text, click outside the chart. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे जो एक्सेसेस होते हैं उन्हें हम टाइटल ऐड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं। आपको क्लिक करना है एक्सेस टाइटल पे, जो कि आपको ऑप्शन नज़र आएगा ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में। उसके बाद आपको ये जो फॉलोइंग चीज़ें दी गई है इन्हें आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको टाइटल ऐड करना है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे तो आप क्लिक करेंगे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको टाइटल ऐड करना है प्राइमरी वर्टिकल वैल्यू पे तो उसके लिए आप प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल पे ही क्लिक करेंगे। आपके सामने एक्सेस टाइटल बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन आपको टेक्स्ट को टाइप करना है इन द एक्सेस टाइटल बॉक्स। ठीक है, या आपको फॉर्मूला बार में भी आप इसे टाइप कर सकते हो। जब आप टाइटल को टाइप कर लोगे तो आपको चार्ट के आउटसाइड क्लिक करना है, तो जो टाइटल है आपके एक्सेस में वो ऐड हो जाएगा। एडिंग डेटा लेबल्स:
To add data labels, follow the given steps. Step 1. Click on the data labels option in the add chart element drop-down list. Step 2. Choose the appropriate option for the placement of labels. ठीक है, यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम डेटा लेबल्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा लेबल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, जो कि आपको ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही नज़र आएगा। उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है, ताकि आप अपने लेबल को प्लेस कर सको। एडिंग लेजेंड्स। टू ऐड लेजेंड, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1. क्लिक ऑन द लेजेंड ऑप्शन इन द add chart element drop down list. Step 2. Choose the appropriate option for the placement of legends. ठीक है, यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम लेजेंड्स को ऐड करते हैं। इसके लिए भी आपको ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेजेंड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है, ताकि आपके लेजेंड्स जो हैं वो आपके चार्ट में प्लेस हो जाए। चेंजिंग चार्ट स्टाइल। We can change the visual style of the chart anytime after we have added the chart. Click on the chart and choose an appropriate style in the chart styles group on the chart design tab. Resizing and moving charts. You can adjust a chart by dragging the chart's frames called handle. To resize a chart proportionally, drag the corner handle on the chart diagonally. To move a chart, point anywhere on the chart and drag it in the desired location. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने एक चार्ट बना लिया, ठीक है, आपको उसका स्टाइल चेंज करना है तो आप इजीली इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको चार्ट स्टाइल पे जाना है, जो कि आपको चार्ट डिज़ाइन टैब में मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप अपने चार्ट का जो साइज़ है उसे भी मूव कर सकते हो, साथ के साथ उसे क्या कर सकते हो, आप रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके प्रोपोर्शन को आप रिसाइज कर सकते हो, घटाना या बढ़ाना ये सब आपके ऊपर है। तो आप हैंडल्स में जाके इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चार्ट को आप मूव करना चाहते हैं किसी भी दूसरे चार्ट में, तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं अपने माउस से। Sorting data. Every day you deal with a lot of data. It is easier to work with sorted data. Sorting of data means to organize the data in ascending or descending order. Excel allows you to sort both numeric and textual data. You can sort the data according to a particular column as well as a range of data. To sort data, follow these steps. Step 1. Select a column or range of data to be sorted. In this case, we have selected the range A3D8. Step 2. Click on the Sort and Filter command from Editing Group under the Home tab. A drop-down list appears. Step 3. Click on the Sort A to Z for text and Sort smallest to largest for numbers to sort the data in ascending orders. The selected data will be sorted according to the names in ascending orders. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपने डेटास को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि एक्सेल सीट में आप अपने डेटास को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें लगा सकते हैं। उनके फिल्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगा सकते हैं या उनको उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉलम या फिर रेंज ऑफ डेटा को सेलेक्ट करना है जिसे आप शॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताया गया है कि आपको A3 से D8 तक का जो डेटा है उसे क्या करना है, शॉर्ट करना है। उसके बाद आप शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको एडिटिंग ग्रुप में नज़र आएगा अंडर द होम टैब, ठीक है। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, A to Z शॉर्ट करना है, ठीक है, टेक्स्ट के लिए। और आपको शॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, किसके लिए, नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। Custom sorting. In case more than one columns are to be sorted in such a way that the first column is in ascending order and if some data is same for more than one rows, then the second column of such rows gets sorted in descending order. You can do this in Excel using custom sort. To use custom sorting, follow these steps. Step 1. Select the range of columns to be sorted. Step 2. Click on the Sort and Filter command from the Editing group under Home tab. A drop-down list appears. Step 3. Click on the Custom Sort option from the drop-down list. Step 4. Check My Data has Headers checkbox if the selected column has a heading at the top. Step 5.
Click on the sort by box and select the column header according to which you want to sort the data. In this case, we have selected client's name header. Step 6. Click on the sort on box and select cell values option. Step 7. Click on the order box and select the A to Z or Z to A option. In this case, we have selected A to Z option. Step 8. Click on the add level button at the top of the sort dialog box to add another column to sort. In this case, we have added amount billed column. Step 9. Click on the OK button. The data will be sorted according to the criteria defined. तो स्टूडेंट्स, अब हम कस्टम सॉर्टिंग के बारे में जान लेते हैं. पहले हमने जाना कि हम कैसे सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को सॉर्ट करते हैं, लेकिन अब हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को और नंबर ऑफ रोज को क्या करना है, कस्टम करना है एक ही कॉलम या एक ही रो के अकॉर्डिंग. तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं. स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेंज ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं. उसके बाद आप सेम उसी फिल्टर पे जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे, जो कि आपको एडिटिंग ग्रुप में नजर आएगा अंडर होम टैब. आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी. देन आपको कस्टम सॉर्ट ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है. ठीक है, उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट से. उसके बाद आपको माई डेटा हैज़ हेडर को क्या करना है, चेक करना है. ठीक है, अगर आपका जो कॉलम है वो सेलेक्टेड है तो आपकी जो हेडिंग है वो आपके टॉप पे नज़र आ जाएगी. देन उसके बाद आपको सॉर्ट बाय बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है कॉलम हेडर को अकॉर्डिंग टू विच, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं. ठीक है, इस केस में हमने जो है क्लाइंट नेम हेडर को सेलेक्ट किया है. उसके बाद हम सॉर्ट ऑन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हम सेल वैल्यूज़ ऑप्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम ऑर्डर बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड फिर हम फिर से क्या करेंगे, A to Z, Z to A ऑप्शन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, इस केस में हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो हम A to Z ही सेलेक्ट करेंगे. देन हम ऐड लेबल बटन पे क्लिक करेंगे जो कि हमें शॉर्ट डायलॉग बॉक्स पे टॉप पे नज़र आ रहा होगा. ठीक है, ताकि हम अपने दूसरे कॉलम के जो हेडिंग है उसे सॉर्ट कर सकें. इस केस में हमने अमाउंट बिल्ड कॉलम को क्या किया है, ऐड किया है. देन उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो अकॉर्डिंग टू आर क्राइटेरिया जो हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा. फिल्टरिंग डेटा इन MS Excel. When the data in MS Excel is too massive to handle and there is a need to filter the data, then the use of the filter option is the best one. Using filter, we are able to display only those data values that meet certain criteria and hide the other data value. We can apply the filter on text, date or numbers. Also, we can use multiple filters for different columns and narrow the resultant. So, filter can help us to filter out the required information and hide the other unwanted information from the data sheet. Let us consider a data sheet that shows the invoices issued to the buyers of different cities. To apply filters, follow these steps. Step 1. Select the range of columns to be filtered. Step 2. Click on the sort and filter command from editing group under home tab. A drop down list appears. Step 3. Click on the filter option from the drop down list. The filters are added to the selected data range. The drop down arrows shown within the red boxes in the following images are filters. Step 4. Click the drop down arrow of the column city to view the different names of the cities. Step 5. To see the invoice values of Delhi, only select Delhi and uncheck all the remaining boxes. Step 6. The data for the city Delhi is filtered and displayed in the following image. To get the data back, open the filter drop down list again and check the unchecked entries. Excel also allows you to use custom filters. Suppose you want to apply the following filter. तो बच्चों हम जान लेते हैं फिल्टर के बारे में कि फिल्टर जो है वो क्या काम करता है MS Excel में. ठीक है, कभी कभी हमारी जो एक्सेल शीट होती है वो बहुत ज़्यादा क्लमजी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. ठीक है, सपोज़ किसी क्लास में 100 किड्स हैं और 100 किड्स का डाटा आपको एक ही साथ स्टोर करना है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पर्टिकुलर बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने में. तो ऐसी सिचुएशन में जो फिल्टर
कमांड होती है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर बच्चे की या पर्टिकुलर जो भी डेटा है उससे हम निकाल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, अब ये हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें हम फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रेंज ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आप शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड में जाएंगे जो कि आपको एडिटिंग ग्रुप में दिखेगा अंडर होम टैब। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी। देन आपको फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो फिल्टर्स हैं वो आपकी सेलेक्टेड डेटा रेंज में क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी या अप्लाई हो जाएंगी। ड्रॉप डाउन एरो जो है वो शो होने लग जाएगा जहाँ पे भी आपने डेटा जो है वो क्या किया होगा, फिल्टर्ड किया हुआ होगा। उसके बाद आपको उस ड्रॉप डाउन एरो पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक कॉलम है सिटी, इसके पास आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है ताकि आप डिफरेंट सिटीज़ के नेम जो हैं वो देख सकें। ठीक है, अगर आपको इनवॉइस वैल्यू देखनी है दिल्ली की तो आपको सिर्फ दिल्ली को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी आपको जो रिमेनिंग बॉक्स है उन्हें आप क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो दिल्ली का डेटा है वो फिल्टर्ड हो जाएगा और आपको इमेज में आपके सामने शीट में दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आपको डेटा जो है वो वापस करना है, जो आपने मतलब फ़िल्टर हटाना है उसमें से, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टम फिल्टर पे जाके उसे क्या करना पड़ेगा, अनचेक करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ टू फिल्टर कॉलम बी इनवॉइस वैल्यू फॉर द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 बट लेस देन 20,000। टेक टिप, प्रेस Ctrl + Shift + L to apply filter. To filter column B, invoice value for numbers greater than 10,000 but less than 20,000. Follow the given steps to get the required information. Step 1. Open the filter in column B, invoice value by clicking on the filter symbol. Step 2. In number filters, choose the greater than options as shown in the following images. Step 3. The custom autofilter box appears. Step 4. Enter the number 10,000 in the box to the right of is greater than. Enter the number 20,000 in the box to the right of is less than. Step 5. The output displays the invoice values greater than 10,000 but less than 20,000. तो बच्चों एक्सेल के थ्रू हमें अपने फिल्टर्स को कस्टम करने का भी मौका मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉलम बी में क्या करना है, फिल्टर करना है अपने नंबर्स को जो कि ग्रेटर देन है 10,000 लेकिन वो लेस देन है किससे, 20,000 से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फिल्टर को ओपन करना पड़ेगा कॉलम बी में। ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन द फिल्टर सिंबल। इसके बाद नंबर फिल्टर में आपको ग्रेटर देन को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कस्टम ऑटो फिल्टर बॉक्स जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, नंबर 10,000 को आपको राइट में प्लेस करना है, राइट करना है और वहाँ पे आपको उसी के साथ 20,000 जो है वो आपको बॉक्स ऑफ द राइट लेस देन में टाइप करना है। इसके बाद आपको आपके सामने जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर जो हैं वो 10,000 से ऊपर हैं और कौन से नंबर जो है वो 20,000 से नीचे है। Conditional formatting. Conditional formatting is used to change the appearance of cells in a range based on your specified conditions. The conditions are ruled based on specified numerical values or matching text. We will take an example to highlight the cells by putting certain conditions on a column. For example, highlight all the cells that are having data greater than a value specified by you for conditional formatting. Follow the given steps. Step 1. Select a range of cells in your Excel sheet, example B2 to B8. Step 2. Go to the conditional formatting present inside the Home tab and click on it. Step 3. Hover the mouse to highlight cells rules in drop down list and then click on the greater than condition rule. Similarly, you can choose any other conditions from here and perform the operation accordingly. Step 4. Here specify a value with which you want to check all the selected values. We have entered 500 here. Step 5. Also specify the color to highlight the greater values and press the OK button.
Step 6. Look in the screenshot given on the next page. All the values that are greater than 500 are highlighted with yellow color. Step 7. Change the B5 cell value to greater than 500 and press the enter key. Step 8. See that the cell color is changed yellow automatically and the cell is highlighted. To remove conditional formatting, select the clear rules option from the conditional formatting drop down menu. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं अपने एक्सेल शीट में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो आपके सेल को अपीयरेंस को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उनकी जो रेंज होती है वो आपके स्पेसिफाइड कंडीशन पे बेस्ड होती है और जो कंडीशंस के रूल्स होते हैं वो स्पेसिफाइड न्यूमरल वैल्यूज़ को या फिर मैचिंग टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कैसे हम किसी सेल को हाईलाइट करते हैं बाय पुटिंग सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपको रेंज ऑफ सेल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे B2 to B8 की जो सेल रेंज है उसे सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है जो कि आपको होम टैब के अंदर नज़र आती है, उस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपका जो माउस है उसे आप हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में नज़र आएगा। देन आपको ग्रेटर देन कंडीशनल रूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको चूज़ करना है दूसरी कंडीशंस को, ठीक है, इसी जो कमांड है वहीं से। फिर आपको स्पेसिफाई करनी है वैल्यू को जो कि आप चेक करना चाहते हो ऑल द सेलेक्टेड वैल्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है 500 एंटर किया है। उसके बाद आपको कलर को भी स्पेसिफाई करने पड़ेगा जिससे आप ग्रेटर वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप कलर सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर नीचे आपको दिखेगा जितने भी आपके वैल्यूज़ हैं जो कि 500 से ग्रेटर हैं वो आपके येलो कलर के साथ हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद आपको बी सेल वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 500 के ऊपर है। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। उसके बाद आपको सेल्स को देखना है जो कि येलो कलर में ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो बच्चों अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्लियर रूल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा जो कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में नज़र आएगा। Data consolidation. Data consolidation is a process of collecting and integrating data, i.e. consolidating from multiple sources into a single destination while applying a specific functions such as sum, average, count, max, min, etc. To understand the data consolidation, assume we have received data from 3 worksheets in the same workbook as shown below. We have sales data of 4 zones in 3 different sheets. Now we need to collate this data into a single worksheet. We have created a template named consolidate sheet for this in a separate sheet. Now follow the steps given below to consolidate data. Step 1. We must first select a cell B2 in the consolidate sheet. Step 2. Then go to the data tab and click on consolidate option under data tools group. Step 3. Once we click on consolidate, we will get the consolidate window as shown on next page. Step 4. In the function drop down list, select a function based on the type of consolidation we need to perform. We must select the desired function. In this example, we want to summarize the total sales of 3 different worksheets. So we will choose the sum function in Excel, which is the default. Step 5. Next, we need to add the reference of each worksheet sale number cell. Then click on the reference box and select the sales number in the worksheet sheet 1. Step 6. Once the reference is selected, click on add. As a result, it will add your chosen references to all references. Step 7. By placing a cursor back to reference, we will go to the second worksheet, sheet 2. Step 8. It will automatically select the range of cells we set in the previous worksheet, but again we must click on add to add the reference.
Step 9, finally we will repeat the same step for the sheet 3 worksheet. Step 10, now we are done with the reference process. To link the consolidated data with the data in the original worksheets, you need to tick the checkbox create links to source data. Step 11, click on OK to get the consolidated summary in the consolidate data. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपने वर्कशीट में डेटास को कंसोलिडेट करते हैं. कंसोलिडेशन मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो सारे के सारे डेटाज होते हैं, अलग अलग डेटाज होते हैं, उन्हें आप एक साथ कंबाइन करते हो, एक साथ कलेक्ट करते हो ताकि उसमें जो फंक्शन है वो आप एक साथ क्या कर सको, परफॉर्म कर सको. जैसे कि अगर आपको सम करना है अलग अलग एक्सेल शीट्स में या अलग अलग सेल्स में, तो आप उनको पहले क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, देन ही आप उस पर कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है. कंसोलिडेशन को समझने के लिए यहाँ पे हमें कुछ शीट्स आपको दी गई हैं. ठीक है. आपको यहाँ पे सेल्स बताई गई हैं 4 जोन्स की 3 डिफरेंट शीट्स में. ठीक है. आपको यहाँ पे अलग अलग शीट्स के अलग अलग डेटा को क्या करना है, एक साथ कंबाइन करना है. तो यही आपकी क्या होती है, कंसोलिडेट शीट कहलाती है, जहाँ पे आप अलग अलग सेपरेट शीट्स को एक साथ क्या करते हो, कंबाइन करते हो. अब हम यहाँ पे जान लेते हैं स्टेप्स के थ्रू कैसे हम अपने डेटा को कंसोलिडेट करते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपको जो आपके सेल है B2 उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है, इन द कंसोलिडेट शीट. उसके बाद आप डेटा टैब पे जाएंगे एंड आप कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जो कि आपको डेटा टूल्स ग्रुप में नज़र आएगा. ठीक है. जब आप कंसोलिडेट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कंसोलिडेट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी दूसरे पेज में. ठीक है. यहाँ पे आपको फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में फंक्शन को सेलेक्ट करना है. ठीक है. और आपके टाइप ऑफ कंसोलिडेशन के बेस पे आपको जो भी परफॉर्मेंस वहाँ पे करवानी है, जो भी डिज़ायर फंक्शन आपको परफॉर्म कराना है वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपको टोटल सेल्स को समराइज करना है अलग अलग शीट्स की, तो आपको सम फंक्शन को चूज़ करना पड़ेगा एक्सेल में. उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा रेफरेंसेस को. ठीक है. आपकी हर एक वर्कशीट में जो सेल नंबर है उसे. उसके बाद आपको रेफरेंस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको सेल्स नंबर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने वर्कशीट शीट 1 में. इसके बाद आपको जब आप रेफरेंस को सेलेक्ट कर लोगे आपको करना है ऐड पे क्लिक. देन जो एज अ रिज़ल्ट है आपके सामने वो आपके रेफरेंसेस में, ऑल रेफरेंसेस में ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों जब आप रेफरेंस पे वापस चले जाओगे, अपने कर्सर को वापस लेके चले जाओगे, तो आप अपनी वर्कशीट 2 पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे. ठीक है. उसके बाद आपके जो रेंज ऑफ सेल्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुए नज़र आएंगे. उसके बाद आपको दोबारा से क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है. ठीक है. उसके बाद फाइनली आपको जो सेम स्टेप्स हैं आपको किस में करने हैं, शीट 3 में भी रिपीट करने हैं जो आपने शीट 1 और शीट 2 में किए थे. इसके बाद जब आपका रेफरेंस प्रोसेस डन हो जाएगा तो आपको जो कंसोलिडेट डेटा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा इन द ओरिजिनल वर्कशीट्स. ठीक है. इसके लिए आपको चेक बॉक्स को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, जो कि है आपका क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा. देन उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंसोलिडेटेड समरी है वो आपको कंसोलिडेट शीट में नज़र आने लगेगी. Consolidate data of sheet 1, sheet 2 and sheet 3 on consolidate sheet. The cumulative totals for these 3 worksheets will be displayed in the consolidated sheet with the linked data. If any change is done on the original sheets, the changes will reflect simultaneously in the consolidated worksheet also. By default of 4 consolidated row details are shown after consolidation. But if you want to view the data used for consolidation, you can do so by clicking on the plus or minus buttons to unhide or hide the collapsed row cell in the sheet. ठीक है. इसके बाद हमें बताया गया कि कैसे हम अपनी शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 का जो डेटा है उन्हें कंसोलिडेट करते हैं. ठीक है. एक सिंगल कंसोलिडेट शीट पे जो आपका क्यूमुलेटिव टोटल्स है आपकी 3 शीट्स का, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा एक ही कंसोलिडेटेड शीट में, जिसमें आपके डेटास को आपस में क्या किया जाएगा, लिंक किया हुआ आपको नज़र आएगा. ठीक है. अगर आपको कोई भी चेंज करना है ओरिजिनल शीट में तो आपके जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली आपकी कंसोलिडेटेड वर्क शीट में भी. ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कहा जाता है जो आपकी कंसोलिडेट रो है, आपकी डिटेल्स जो होती हैं वो
दिखाई देती हैं आफ्टर कंसोलिडेशन। जब आप उन्हें कंसोलिडेट कर लेते हो तो आपके जो चेंजेस होते हैं वो नज़र आने लगते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने डेटास को देखना है, ठीक है, अगर उनको कंसोलिडेशन के लिए आपको यूज़ करना है तो आप सिंपली प्लस या फिर माइनस बटन पे आप क्या कर सकते हैं, उन्हें हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।